اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک کے روٹ ورڈز کو دیکھیں گے۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے للملائکتی۔ للملائکتی کا روٹ ورڈ ہے حمزہ لام کاف، اور اس کا مطلب ہے فرشتوں سے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں۔ دوسرا ورڈ ہے جاعلن۔ جعل اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ خلیفتن، خا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور انہوں نے اس کا مطلب لکھا ہوا ہے ایک نائب، کیونکہ یہ دیکھیں نا خلیفتن ہے نا، خلیفتن ہے اور یہ نکرہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کا مطلب ایک نائب لکھا ہوا ہے۔ اور نائب یا خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی پیچھے آنے والا، جانشین بننے والا، اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یفسدو، فا سین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ یسفکو، سین فا کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہاں پر انہوں نے اس کا مطلب لکھا ہوا ہے وہ بہائے گا۔ یسفکو کا روٹ ورڈ سفکا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہانا۔ کیا بہانا؟ خون بہانا۔ سفکا لفظ خون بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ لفظ اردو میں موجود ہے کہ نہیں؟ جی نہیں، یہ اردو میں موجود ہے، اور اردو میں ہم نہیں کہتے وہ بہت سفاک قاتل تھا اور سفاک اور ظالم حکمران تھا۔ تو سفاک جو ہے وہ اردو میں بھی موجود ہے، یعنی بہت زیادہ خون بہانے والے کو سفاک کہتے ہیں۔ الدماء، الدماء دال میم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ دم کی جمع ہے، یعنی خون، خون کو دماغ کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ نسبح، سین با ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے تیرنا، سیاروں کی گردش، تیزی سے کسی کا حکم بجا لانا، پاکی بیان کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی سے پھر تسبیح بنتا ہے۔ دیکھیں یہ جو میں آپ کو زائد معنی بتا رہی ہوں نا، یہ دراصل استاذہ یعنی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے بتائے ہوئے ہیں۔ میں جب تعلیم دین کورسپونڈنگ کورس کر رہی تھی تو اس وقت استاذہ کے لیکچرز کو سن کر میں نے جو نوٹس بنائے تھے یہ ان نوٹس میں سے ہیں، کیونکہ وہ ایک ماہر استاد ہیں اور اس علم میں مہارت رکھنے والی شخصیت ہیں، اسی لیے میں ان کی بتائی ہوئی یہ روٹ ورڈز کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ باقی جو میں معنی بتاتی ہوں وہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے معنی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ دونوں شخصیات ہمارے لیے بےحد قابل احترام ہیں، اور ڈاکٹر اسرار صاحب تو فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ وہ میرے پہلے استاد تھے، اور اس کے بعد میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے تفاسیر وغیرہ کو سنا، اور کچھ تھوڑا بہت مولانا مودودی کی تفاسیر کو بھی پڑھا، تو یہ سب ان میں سے ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ بحمدک، حامیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ حمد کسی کی تعریف کرنا ہے۔ یعنی تیری حمد کے ساتھ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سورہ فاتح کی تفسیر کرتے ہوئے الحمد کی جو تشریح کی، میرے خیال میں وہ بہت بہترین ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ الحمد صرف تعریف نہیں بلکہ شکر جمع تعریف ہوتی ہے۔ یعنی ہم جب ایک پھول کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، مگر اس پھول کے شکر گزار نہیں ہوتے، مگر جب ہم اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں تو یہ صرف تعریف نہیں ہوتی بلکہ یہ شکر جمع تعریف ہوتی ہے۔ اس میں اپنے پروردگار کی تعریف بھی ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی اس کی شکر گزاری بھی ہوتی ہے، اور میرے خیال میں یہ الحمد کی بہترین تفسیر ہے۔
चलिए आगे देखते हैं। नुक़द्दिसु, नुक़द्दिसु क़ाफ दाल सीन इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है हम पाकी बयान करते हैं। क़द्दसा का मतलब है पाकी को याद करना, बुजुर्गी बताना। उर्दू में भी ये लफ्ज़ मौजूद है। हम कहते हैं मुक़द्दस किताब, मुक़द्दस जगह, और इसी तरह हम कहते हैं उसने फ़लाँ जगह के तक़द्दुस को पामाल किया, उसने इस रिश्ते के तक़द्दुस को पामाल किया। तो ये रूट वर्ड उर्दू में भी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका मानी भी पता है। आलमु, आलमु का रूट वर्ड वही इल्म है और आलमु जब बन जाता है तो इसका मतलब होता है मैं जानता हूँ। ठीक है, इन्होंने खूब जानता हूँ जुमले के हिसाब से लिखा हुआ है। आलमु का मतलब है मैं जानता हूँ। आगे देखिए अल अस्मा, सीन मीम वाव, इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है नाम। इसम की जमा अस्मा है। इसम उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं आपका इस्म गिरामी क्या है, तो इस्म लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुल्लहा, कुल्ला ये रूट वर्ड हम पढ़ चुके हैं, काफ लाम लाम। कुल्ला का मतलब होता है यानी सब के सब। चलिए आगे देखते हैं। औरदहुम, औरदहुम, औरदहुम का रूट वर्ड एन रॉ दौद है यानी कि पेश करना, हाजिर करना। ये लफ्ज़ भी उर्दू में मौजूद है। हम कहते हैं आपकी इत्ला के लिए अर्ज़ है। इसी तरह हम दरख्वास्त लिखकर आखिर में अपना नाम लिखने से पहले अल आरिज़ लिखते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है। फ़क़ौला, फ़क़ौला क़ाफ वाव लाम रूट वर्ड है, हम पढ़ चुके हैं। कौल, अम्बिऊनी, अम्बिऊनी नून बा हमज़ा इसका रूट वर्ड है। नब्बे, नबी, अब ये नीचे भी देखें अम्बिहुम, अम्बाहुम, ये सारे लफ्ज़ इसी नून बा हमज़ा रूट वर्ड से बनते हैं। और अम्बिऊनी का मतलब होगा मुझे बताओ। ठीक है, नबी किसको कहते हैं? खबर देने वाले को कहते हैं। इसी तरह नून बा हमज़ा नबा का मतलब होगा उसने खबर दी। सौदिकीना, सौद दाल क़ाफ इसका रूट वर्ड है और इसके मतलब है सच्चे हो। इन्होंने जुमले के हिसाब से लिखा हुआ है। सौदिकीना का मतलब सच्चे है और हम उर्दू में भी कहते हैं सादिक और अमीन। इस रूट वर्ड को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। क़ालू पढ़ चुके हैं हम। सुब्हानका ये रूट वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। इल्मा, अल्लमतना, अल अलीमु, देखिए ये तीनों अल्फाज जो हैं इन तीनों का रूट वर्ड ऐन लाम मीम है। हमने ज़्यादातर इस वक्त तवज्जो रूट वर्ड पर रखनी है कि इस रूट वर्ड से कौन कौन से अल्फाज बन सकते हैं, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज में उनके रूट वर्ड को पहचानना शुरू कर दें। आगे देखें। अल हकीमु, हकमा, हा काफ मीम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है हिकमत वाला। हकीम हिकमत वाला, इसी से हाकिम लफ्ज़ बनता है, इसी से महकूम बनता है और इसके अलावा भी बहुत से अल्फाज बनते हैं इनसे। अम्बिहुम, अम्बअहुम अभी हम पढ़ चुके हैं इसे। आलमु पढ़ चुके हैं। गाइबा, गाइबा ये भी हम तफसील से पढ़ चुके हैं। तुबदूना, तुबदूना बा दाल वाव इसका रूट वर्ड है। इसका मतलब है तुम जाहिर करते हो। देखिए बा दाल वाव जो ये रूट वर्ड है ना, बदा, बदा यबदउ, इसका मतलब होता है जाहिर करना या शुरू करना। चलिए आगे देखते हैं। तकतुमूना, काफ ता मीम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है तुम छुपाते हो। इसे भी आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद है उसजुदू, उसजुदू सीन जीम
दाल इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है तुम सब सजदा करो। ये अमर है और इसका मतलब है तुम सब सजदा करो। सजदा उर्दू में भी मौजूद है। अबा, हमजा बा या इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है इनकार किया। देखें, अबा का मतलब होता है पसंद न करना, बात न मानना, कबूल न करना। ये इसके मज़ीद मानी होते हैं और जुमले के हिसाब से जो मानी वहाँ पर लगाना चाहिए फिर हम वही लगा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस्तकबरा, काफ बा रा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है तकब्बुर किया। तकब्बुर, किबर, अकबर, अकाबरीन, ये सारे अल्फाज हम देखें तो उर्दू में मौजूद हैं, तो इससे हम बखूबी वाकिफ़ हैं और उर्दू में भी ये मौजूद है। तकब्बुर क्या है, किबर क्या है, हमें अच्छी तरह पता है। अल काफिरीना इसका रूट वर्ड काफ फा रा है और ये हम पढ़ चुके हैं। उस्कुन, उस्कुन का रूट वर्ड सीन काफ नून है। तुम जाकर रहो इसका मतलब है और इसका मतलब होता है ठहर जाना, सुकूनत इख्तियार करना, कहीं पर रहना। इसी से मसाकिन लफ्ज़ बनता है, मस्कन लफ्ज़ बनता है, सुकून लफ्ज़ भी इससे बनता है। इसी तरह उर्दू के काफ़ी अल्फाज जो हैं वो इससे बनते हैं और इसका मतलब भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता है। मैं जब कहती हूँ कि इसका मतलब हमें पता है तो इसका मतलब ये है कि इस लफ्ज़ को हम, इसके तर्जुमे को, इसके मानी को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। उर्दू में इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ज़ौजुका, ज़ौजुका ज़ा वाव जीम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है तुम्हारी बीवियाँ। ज़ौज मैंने आपको बताया था ना कि ज़ौजा लफ्ज़ बीवी के लिए आता है और ज़ौज लफ्ज़ जो है वो जोड़े के लिए भी आता है, ग्रुप के लिए भी आता है। ठीक है ना, तो ये इसके बहुत से मानी होते हैं और ज़्यादातर ये बीवी के लिए इस्तेमाल होता है। अल जन्नता, अल जन्नता को हम पढ़ चुके हैं। कुला, हमज़ा काफ लाम इसका रूट वर्ड है और ये अमर है, इसका मतलब है तुम दोनों खाओ। तो चलिए आगे देखते हैं। रगदन, रगदन का रूट वर्ड रॉ गैन दाल है और इसका मतलब है शौक से, खुशी से। इसी तरह हैसु, हैसु हा या सा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है जहाँ से चाहो। अब यहाँ इन्होंने जुमले के हिसाब से चाहो भी लिखा हुआ है, लेकिन हैसु का मतलब है जहाँ कहीं से, फ्रॉम वेयर एवर। आगे देखते हैं। शेतुमा, शीन या हमज़ा इसका रूट वर्ड है, इसे हम पढ़ चुके हैं और शाआ हमने पढ़ा था। अब शेतुमा देखें उसी के साथ तुमा जुड़ गया है, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो तुम दोनों चाहो। हम पढ़ चुके हैं ना कि तुमा जो है वो दो बंदों के लिए, डूल के लिए आता है। अब है तक़रबा, तक़रबा क़ाफ रा बा इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब है तुम दोनों करीब जाना, तुम दोनों नज़दीक जाना। जब तक़रबा से पहले ला आ जाएगा तो फिर इसका मतलब होगा कि तुम दोनों करीब नहीं जाना, तुम दोनों नज़दीक नहीं जाना। ला की वजह से ये नहीं में बदल जाएगा। लेकिन अगर खाली हम तक़रबा बोलेंगे तो इसका मतलब होगा तुम दोनों करीब जाना। अश्शजरता, अश्शजरता का रूट वर्ड शीन जीम रॉ है। शजरा वो पौधा जिसका तना मजबूत हो और वो ऊपर की तरफ बढ़े, यानी दरख्त। आगे देखें। फतकूना, बस तुम हो जाओगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा है वरना तुम हो जाओगे।
काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है और ये भी हम पढ़ चुके हैं, काना यकूनु। काना का मतलब होता है हो जाना। अज़्ज़ालिमीना, अज़्ज़ालिमीन जालिम की जमा है और हमें अच्छी तरह पता है कि जालिम किसे कहते हैं। जुल्म करने वाले, ज्यादती करने वाले को जालिम कहते हैं। फ़अज़ल्लहुमा, फ़अज़ल्लहुमा का रूट वर्ड ज़ा लाम लाम है, फिर फुसला दिया दोनों को। ज़ल्ला लफ्ज़ का मतलब होता है बिला इरादा पाँव का फिसलना। जलील हुआ, मुशक्क़त में पड़ा, किसी को अपनी बातों में ले आना और उससे कोई गलत काम करवा लेना, जो काम उसे नहीं करना चाहिए था वो उससे करवा देना। चलिए आगे देखते हैं। अश्शैतानु, शीन पौ नून इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है शैतान। हम अच्छी तरह जानते हैं कि शैतान किसे कहते हैं, उर्दू में भी ये मौजूद है। फ़अख़रजहुमा, खा रा जीम इसका रूट वर्ड है और ये हम पढ़ चुके हैं। खरजा, खरजा का मतलब है वो निकला और अखरजा का मतलब उसने निकाला। इहबितू, इहबितू का ह बा क़ा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है उतरो, उतर जाओ। बादुकुम, बा ऐन दौद इसका रूट वर्ड है और ये भी हम पढ़ चुके हैं। अदुवुन, अदु दुश्मन को कहते हैं। ऐन दाल वाव इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है दुश्मन हो। मुस्तक़र्रुन, क़ाफ रॉ रॉ इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है ठिकाना है। हम उर्दू में नहीं कहते करार, मुझे करार आ गया, और करार लफ्ज़ जो है ना वो इसी रूट वर्ड से बना है और इससे और भी बेशुमार अल्फाज बनते हैं और अरबी में मुस्तक़र लफ्ज़ ठिकाने के लिए इस्तेमाल होता है। मताउन, मताउन मीम ता ऐन इसका रूट वर्ड है। मताउन फ़ायदे को कहते हैं, दौलत फ़ायदा, उसे मता कहते हैं। अच्छा एक बात बता दूं कि ये रूट वर्ड्स की जो लिस्ट है ना, ये मैंने नेट से डाउनलोड की है और ये मैंने ख़ुद नहीं बनाई है। तो इंटरनेट पे जो मौजूद थी मजबूरन मुझे वही डाउनलोड करनी पड़ी। यहाँ पर शायद इनसे यहाँ एक गलती हो गई है, इन्होंने फ़ायदा का जो हिज्जा है, जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है। चलिए अल्लाह ताला हमारी गलतियों और कोताहियों को माफ़ करे। अगला लफ्ज़ है हीनिन, हीनिन हा या नून इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है एक वक्त तक। सिर्फ हीनिन का मतलब होगा एक ख़ास वक्त और इला हीन का मतलब होगा एक ख़ास वक्त तक। आगे देखते हैं। फ़तलक्का, फ़तलक्का लाम काफ या इसका रूट वर्ड है, फिर सीखे। लाम काफ या रूट वर्ड का मतलब है मिलना, सीखना या पाना। मिलना, सीखना या पाना इसका मतलब होता है। और यहाँ पर फ़ा अलग है और तलक्का अलग है। इंशाल्लाह आगे हम ग्रामर में सीखेंगे कि लाम काफ या से फ़तलक्का कैसे बन गया, इसे इंशाल्लाह हम सीखेंगे। कलिमातिन, कलिमा की जमा है। उर्दू में भी हम कहते हैं पहला कलमा सुनाओ, दूसरा कलमा सुनाओ। तो कलमा किसको कहते हैं? अल्फाज को। और कलिमा दरअसल अरबी ज़बान में ज़ख्मी करने को भी कहते हैं, क्योंकि कुछ बातें भी इंसान के दिलों को ज़ख्मी कर देती हैं, इसलिए अरबी ज़बान में इसका मतलब होता है ज़ख्मी करना या बात करना। ये डॉक्टर फ़रहत हाशमी ने ये इसका मीनिंग बताया है और ये मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप भी लिख लें अपनी डायरी में, शायद कभी काम आए आपके भी। चलिए आगे देखते हैं। फताबा, ता वाव बा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है फिर मेहरबान हुआ। फ़ा अलग है, ताबा अलग है, तो फिर बन जाता है फताबा। और इसी से तौबा बनता है। तौबा लफ्ज़ हम खूब अच्छी तरह जानते हैं कि तौबा किसे कहते हैं।
توبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف متوجہ ہونا، اور جب یہ لفظ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یعنی توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے کہ فتابہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے توبہ نہیں کرے گا نا، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو پھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آتا ہے فتابہ، یعنی اس نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچھا، فتابہ کے بعد التواب، اس کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے، تا واو با روٹ ورڈ سے التواب بنا ہوا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ التواب کا مطلب ہے بار بار معاف کرنے والا۔ جمیعاً جیم میم عین روٹ ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یأتینکم روٹ ورڈ عطا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہدن ہدایا، یہ روٹ ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تبیع، تا با عین اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے پیچھے آنا، پیروی کرنا، اسی سے اردو میں ہم کہتے ہیں تابع دار، اور اتباع کرنا، تابع ہونا، یہ سارے الفاظ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آج کل کے بچوں کو ذرا اردو کم ہی اچھی آتی ہے، اور جو پہلے زمانے کے لوگ تھے وہ چونکہ بہت اچھی اردو بولتے تھے، اس لیے اردو کے یہ سخت الفاظ بھی انہیں اچھی طرح آتے تھے، لیکن آج کل کے بچے تھوڑے اردو میں کمزور ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ خوفن، خا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ خوف اس کا مطلب ہے، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ خوف کا کیا مطلب ہے، ڈرنا، خوف کھانا۔ یحزنون، حزنون اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوگا غمگین ہوں گے یا ہوتے ہیں۔ یہ جب ہم فعل مضارع پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ حزن غم کو کہتے ہیں۔ کذبو اسے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ بآیاتنا حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے ہماری آیتوں کے ساتھ یا ہماری آیتوں کو۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یعنی جب کوئی ہمیں کوئی نشانی دیتا ہے تو جب ہم اس نشانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی یاد آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اسے دیکھ کر ہمیں اپنے رب کی یاد آتی ہے، تو آیت کا اصل مطلب ہوتا ہے نشانی۔ اصحاب صاد حابہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے رہنے والے، یعنی طویل عرصے تک کسی کی صحبت میں وقت گزارنے والے، دوست۔ زیادہ تر یہ لفظ دوستوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ انسان اس کے ساتھ رہتا ہے نا، طویل عرصے تک ان کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے۔ اصحاب لفظ سے تو ہم بخوبی واقف ہیں، ہم نہیں کہتے صحابہ کرام، ہم کہتے ہیں صاحب ادھر آ جائیے، اس طرح کر کے، اور اسی سے لفظ صحبت بھی نکلتا ہے، کسی کی صحبت اختیار کرنا، کسی کے پاس بیٹھنا، کسی کے ساتھ دوستی کرنا، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ النار، نون واو را اس کا روٹ ورڈ ہے اور اسے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ خالدون، خا لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والے۔ خالدون خالد کی جمع ہے اور خالد کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک کے روٹ ورڈز کو بھی پڑھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر مجھ ناچیز گناہ گار سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یا اللہ اسے میری کم علمی اور جہالت سمجھ کر معاف کر دینا، اور اللہ کرے کہ آپ سب بھی اس علم کو پوری محنت سے، محبت سے اور خلوص سے حاصل کریں، اس کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کریں اور انت تک محنت کریں، اور ویسی محنت کرنے کی توفیق دے جیسا کہ اس کے لیے محنت کرنے کا حق ہے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس علم کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے، حتیٰ کہ ہماری نسلوں تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہماری محنت کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔